برمودا ٹرائی اینگل سمندر کا وہ علاقہ جہاں کشتیاں اور بحری جہاز اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ کیا یہ واقعی میں سچ بات ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں داخل ہوتے ہی بحری جہازوں کے کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم بھی کٹ آف ہو جاتا ہے۔ ایسا صرف کشتیوں اور بحری جہازوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سمندری علاقے کے اوپر اڑنے والے بڑے بڑے ہوائی جہاز اور طیارے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ 50 سے زیادہ بحری جہاز اور کئی کشتیاں اور 20 سے زیادہ ہوائی طیارے یعنی ایئر پلینز اس علاقے میں غائب ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر دجال اور شیطانی طاقت کا قبضہ ہے۔ دجال کا جزیرہ اسی علاقے میں ہے اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بہت بڑی مچھلی یا مونسٹر ہے جو یہ سب چیزیں کھا جاتی ہے، مگر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑی بھنور ہے جو سب کو اپنے محور میں کھینچ لیتی ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایلینز کا قبضہ ہے جو چیزوں کو یہاں سے کھینچ کر ٹائم ٹریول کے ذریعے کسی اور دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ان سب قصے کہانیوں اور سنسنی خیز واقعات سے دور میں آپ کو جدید سائنسی تحقیق کے مطابق بتاؤں گا اصل حقیقت اور سچائی برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں، مگر اس ویڈیو کے آخر میں۔ مگر پہلے برمودا ٹرائی اینگل کے 5 سب سے سچے اور حیران کر دینے والے واقعات جو بے حد دلچسپ بھی ہیں اور حیران کن بھی۔ امریکہ کے میامی، پورٹو ریکو اور برمودا آئی لینڈز کو جب ان 3 لائنوں سے جوڑا جاتا ہے تو یہ علاقہ بنتا ہے جسے برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ یہ سمندری علاقہ پاکستان جیسے ملک سے بھی 4 گنا زیادہ بڑا ہے۔ ٹرائی اینگل کو ہمیشہ ہی شک اور تجسس کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جوشوا سلوکم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سمندر کے راستے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا۔ وہ بھی 1909 میں اٹلانٹک اوشن کا سفر کرتے ہوئے برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں ہی اچانک غائب ہوئے تھے اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مگر برمودا ٹرائی اینگل کی اصل شہرت دنیا میں تب ہوئی جب برمودا ٹرائی اینگل نے سپر پاور امریکہ کو اپنا نشانہ بنایا۔ تب اخبارات میں سرخیاں لگنے لگیں۔ سال 1918 امریکن نیوی کا اس وقت کا سب سے بڑا اور تیز USS سائیکلوپس کارگو شپ، جس میں 309 لوگ سفر کر رہے تھے اور اس میں تقریباً 1000 ٹن کے قریب بھاری سامان بھی تھا، یہ سفر کے دوران برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے سب کو اچانک چونکا کر رکھ دیا۔ اتنا بڑا جہاز اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو برمودا ٹرائی اینگل کا سب سے خطرناک اور دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں۔ سال 1945 5 دسمبر دوپہر 2:15 US کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹ اپنا 3 گھنٹے کا روٹین ٹریننگ مشن کرنے یہ فلوریڈا سے ٹیک آف کرتے ہیں اور فلائٹ میں ٹوٹل 14 کرو ممبرز ہیں۔ یہ 5 جہاز فلوریڈا سے ایسٹ کی سائڈ پر اڑان بھرتے ہیں۔ اچانک تمام پائلٹس کے کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ پائلٹس اپنا بیک اپ کمپس نکالتے ہیں مگر وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ کمپس کے خراب ہونے کی وجہ سے 5 جہازوں کو اب پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پرواز کر رہے ہیں۔ موسم اچانک خراب ہو جاتا ہے اور شام کا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے۔ اس فلائٹ کا آخری ریڈیو ٹرانسمیشن میسج آتا ہے کہ 5 جہازوں کا انجن بند ہو چکا ہے اور ہم سب ایک ساتھ نیچے جا رہے ہیں، اور پھر 5 جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن تک ان جہازوں کا پانی کے نیچے نہ کوئی نشان ملا ہے اور نہ کوئی ملبہ۔ اس حادثے کے فوراً بعد ان 5 جہازوں کی تلاش کے لیے ایک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن لانچ کیا جاتا ہے۔ ایک ایئر کرافٹ ان جہازوں کی تلاش کے لیے پرواز بھرتا ہے۔ اس جہاز میں 13 لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تلاش کے لیے جاتے ہیں اور یہ جہاز بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب میں سب سے زیادہ اور بے حد دلچسپ واقعہ آپ کو اس آدمی کا سناتا ہوں جو برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے سے زندہ بچ کر واپس آ گئے تھے۔ یہ تھے بروس جرنون۔ اپنے والد اور اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ 4 دسمبر 1970 کو بہاماس سے خراب موسم کے باوجود ایک سنگل ایئر کرافٹ انجن کو لے کر کے وہ اڑان بھرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جب ان کا پلین برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو انہیں ایک عجیب و غریب سی دھند گھیر لیتی ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہی یہ دھند ایک ٹنل کا روپ دھار لیتی ہے جس کے کافی آگے انہیں ایک روشنی دکھائی دیتی ہے اور بروس پلین کو ٹنل میں سے روشنی کی طرف اڑاتے رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ٹنل نما بادلوں میں بادلوں کا گھیرا تنگ ہونے لگتا ہے اور بادل اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتے رہتے ہیں۔ بڑی مشکلوں اور دقتوں کے بعد آخرکار بروس اپنے پلین کو اس ٹنل نما دھند سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں
और उनका प्लेन जैसे ही बाहर आता है इनके प्लेन को जीरो ग्रेविटी का एहसास होता है। ब्रूस फौरन एयर कंट्रोल से राब्ता करके लोकेशन मालूम करना चाहते हैं, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उनका कोई राब्ता नहीं होता। थोड़ा सा और आगे सफर करने के बाद अचानक इन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आवाज आती है। ब्रूस फौरन पूछते हैं इस वक्त उनका जहाज कहाँ है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें बताता है कि आप मियामी शहर में परवाज कर रहे हैं। ब्रूस और उनका वालिद और उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनका प्लेन मैक्सिमम स्पीड से दुगनी स्पीड से भी ज्यादा तेज उड़ता तो वो 34 मिनट में मियामी शहर तक नहीं पहुंच सकते थे। मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ब्रूस अपने प्लेन का ऑयल टैंक चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि प्लेन में जितना पेट्रोल खर्च होना चाहिए था उतना पेट्रोल तो खर्च हुआ ही नहीं। इस वाक़े की तफसील ब्रूस को मीडिया में बहुत मशहूर कर देती है। दोस्तों, अब बारी है बरमूदा ट्रायंगल की सबसे मशहूर और दिलचस्प मिस्ट्री की। साल 1881 में एक एलन ऑस्टन नाम का बहरी जहाज जो कि 210 फुट लंबा है, लंदन से न्यूयॉर्क सफर के लिए रवाना होता है। सफर करते हुए सफर के दौरान एलन ऑस्टन बहरी जहाज के करीब एक और जहाज दिखाई देता है। शिप का कैप्टन ये महसूस करता है कि दूसरे शिप पर कोई भी आदमी नहीं है। वो तसल्ली करने के लिए खुद जाकर देखता है तो ऐसा ही होता है, उस शिप पर कोई बंदा नहीं होता। शिप का सामान तो अपनी जगह पर मौजूद होता है, मगर शिप बिल्कुल खाली होता है। शिप का कप्तान अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस अनजान जहाज में बिठा देता है और दोनों जहाजों को लेकर के अमेरिका सफर करने लगता है। रास्ते में रात के वक्त मौसम अचानक खराब हो जाता है और ये अनजान जहाज अलग हो जाता है। अगले दिन एलन ऑस्टन बहरी जहाज का कैप्टन अपने स्पाई ग्लास से उस जहाज को ढूंढता रहता है, तो जहाज उसको आखिरकार मिल जाता है, मगर जिन लोगों को जहाज में बिठाया था उसने, उसके क्रू मेंबर्स, उनमें से कोई भी नहीं होता। कहाँ गए वो आदमी जो जहाज में बिठाए थे? ये देखकर सब खौफजदा हो जाते हैं, मगर एलन ऑस्टन बहरी जहाज के कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स को एक बार फिर इस जहाज में बिठा देते हैं हिम्मत करके, और फिर वो साथ साथ सफर करने लगते हैं और अमेरिका जाने लगते हैं। लेकिन अचानक फिर रात को ऐसा ही होता है और मौसम बेहद खराब हो जाता है और जहाज फिर से अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन फिर जहाज का कैप्टन अपने स्पाई ग्लास से उन्हें ढूंढते रहते हैं तो जहाज मिल जाता है, लेकिन जो क्रू मेंबर्स अब दोबारा उसमें बिठाए थे वो कहाँ गए? वो भी सब के सब दोबारा गायब हो जाते हैं। एलन ऑस्टन बहरी जहाज जब वापस जाता है तो इसके मालिक ये तमाम वाकयात को सुनकर इतने डर जाते हैं कि वो इस जहाज को बेच ही देते हैं। इस वाकया में कितनी हकीकत और सच्चाई है, ये वाकया काफी पुराना है और इस वाकये को वेरीफाई करना काफी मुश्किल है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहली मर्तबा अमेरिका को दरियाफ्त करने निकले थे, उन्होंने समंदर के रास्ते सफर किया था। उन्होंने भी अपनी तहरीर में ये रिपोर्ट किया था कि जब वो इस इलाके से गुजर रहे थे तो उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया था, और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें बड़ी ही एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और वो गोला इन्हें आसमान में दिखा नीचे समंदर में गिरता हुआ। अब मैं बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत अगर आपको बताऊं तो सुन करके आपके होश उड़ने वाले हैं। एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। वो भी तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर निकल करके आए कि शुरुआत में ऐसे बहुत से वाकयात हकीकी तौर पर जरूर हुए थे, मगर जब अखबारात में सुर्खियां लगने लगी और बहुत से नॉवेल्स इस मौजू पर लिखे गए तो फिर वक्त के साथ साथ इसको मिस्ट्री बना दिया गया और लोगों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास और बेबुनियाद थीं। एक ऑफिशियल अमेरिकन अदारा है ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उनका कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो जाने वाले वाकयात जैसे बिल्कुल ऐसे वाकयात इस इलाके के अलावा भी समंदरी इलाकों में हुए हैं। ये बहुत नॉर्मल वाकयात हैं जो समंदर के दूसरे इलाकों में भी होते रहते हैं। एक और अमेरिकी इदारा है कोस्ट गार्ड का। उनका तो ये कहना है कि वो बरमूदा
ट्राइंगल एरिया इन ट्राइंगल लाइंस को कोई डेंजरस लाइंस के तौर पर मानते ही नहीं। कोस्ट गार्ड इदारे का कहना है कि ऐसी कोई लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे लिए, बल्कि कोस्ट गार्ड इदारे का तो ये तक कहना है कि इस इलाके से रोजाना कई बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई तैयारे इस इलाके से रोज गुजरते रहते हैं और ये इलाका जहाज राजी के लिए दुनिया का हैवीली ट्रैफिक एरिया है। और इतने सालों में ये इंसिडेंट्स होना एक बहुत ही मामूली बात है, जैसे कि ऐसे इंसिडेंट्स समंदर के दूसरे इलाकों में भी हो चुके हैं। बस खबरों और नॉवेल्स की वजह से इस इलाके को मिस्ट्री बना दिया गया और इस पर बहुत सी सनसनीखेज वीडियोस बनाई गई और बिला वजह इस समुद्री इलाके को बदनाम किया गया, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी और कुछ भी नहीं है। इस इलाके से जो बहरी जहाज ऑफिशियल्स जो सफर करते रहते हैं, उन्होंने बताया है कि हम कई मर्तबा इस इलाके से गुजर चुके हैं और आगे भी गुजरते रहेंगे। यहाँ ना तो कोई दज्जाल है, ना कोई शैतानी ताकत और ना कोई खतरनाक भंवर। 2013 में WWF ने अपनी एक डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट की जहाज राजी के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन 10 जगहों के बारे में। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उसमें बरमूदा ट्राइंगल का नाम तक भी नहीं था। ये सिर्फ सनसनी फैलाई गई है और YouTube पर व्यूज हासिल करने के लिए कई कहानियां बनाई गई हैं। इन बरमूदा ट्राइंगल गुमशुदगियों की आखिर वजूहात क्या रही होंगी, जब इन पर जदीद और साइंसी तहकीक की गई, जिसकी बुनियाद पर कुछ थ्योरीज पेश की गई। पहली थ्योरी तो ये थी कि बरमूदा ट्राइंगल के इलाके में पानी ज्यादा गहरा नहीं है और कई जगहों पर शैलो वाटर है, क्योंकि बरमूदा ट्राइंगल के इलाके में कई जगहों पर रेत इस तरह पानी के ऊपर उभर कर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ कश्तियां और बहरी जहाज यहाँ अटक गए होंगे या फंस गए होंगे। और एक दूसरी थ्योरी ये है कि इस समंदरी इलाके में मीथेन गैसेस का इखराज होता है, यानी बबल्स की शक्ल में मीथेन गैस यहाँ पानी में काफी ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। अगर पानी में मीथेन गैस बढ़ जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जब डेंसिटी कम हो तो चीजें पानी में डूब जाती हैं। इसी तरह कश्तियां और बहरी जहाज इसमें डूब गए होंगे। जिस तरह अगर पानी में नमक ज्यादा हो तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है और पानी में फ्लोट करना आसान हो जाता है। जिन समंदरी इलाकों में पानी में नमक की मिकदार काफी ज्यादा होती है, वहाँ जानदार तो बहुत कम पाए जाते हैं, मगर उस पानी में तैरना और फ्लोट करना आसान हो जाता है। तीसरी थ्योरी एक ये पेश की गई कि बरमूदा ट्राइंगल के इलाके में हरिकेन्स की तादाद दुनिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद में हरिकेन्स इस इलाके में आते हैं और ये भी एक वजह हो सकती है इन गुमशुदगियों के पीछे। हाल ही में बरमूदा ट्राइंगल पर एक लेटेस्ट रिसर्च की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से जब बरमूदा ट्राइंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज से पहले कभी किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था। उस टीम ने नोटिस किया कि बरमूदा ट्राइंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि उनकी शेप्स हेक्सागोन शेप्स की सी है और उनका साइज भी 88 किलोमीटर के साइज जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम ने रिसर्च की तो पता चला कि ये कोई आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब्स क्लाउड्स हैं। और जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे इस कदर तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर आवर जितनी होती है और इस हवा की स्पीड में इतनी तेज होती है कि इनमें कोई जहाज आसानी से उड़ ही नहीं सकता और ना ही कोई कश्ती और शिप इसमें सफर कर सकती है। और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं उनमें कोई भी शिप इसमें तैर नहीं सकता। साइंसदानों का ये कहना था कि शायद बरमूदा ट्राइंगल में होने वाले हादसात की एक बड़ी वजह ये हो सकती है। आखिर में मैं आपको क्लियर कट तौर पर बताऊंगा कि अभी आप marinetraffic.com पर जाएं और देखें कि बरमूदा ट्राइंगल के इलाके में कितने शिप और हवाई जहाज सफर कर रहे हैं। तो यकीनन जब आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे marinetraffic.com पर तो आपको पता चलेगा कि कई बहरी जहाज, कश्तियां और कई हवाई तैयारे इस इलाके में सफर कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे और कई ऑफिशियल्स आपको बताएंगे कि बरमूदा ट्राइंगल के इलाके से गुजरना बहुत ही नॉर्मल और मामूली बात है। अगर आपके करीबी लोगों में या कोई रिश्तेदारों में कोई पायलट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कभी किसी ने ऑफिशियली तौर पर उन्हें किसी समुद्री इलाके के ऊपर उड़ने से मना किया है, तो यकीनन वो आपको बताएंगे कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या कोई करीबी रिश्तेदारों में से हैं जो बहरी जहाज में सफर का तजर्बा रखते हैं या अगर कोई नेवी शिप में सफर का तजर्बा रखता है तो आप उनसे पूछ
सकते हैं कि कभी किसी ने उन्हें बरमूदा ट्रायंगल के इलाके से नहीं गुजरना, कभी किसी ने उन्हें आज तक मना किया है, तो वो आपको बताएंगे कि कभी किसी ने बरमूदा ट्रायंगल के इलाके से गुजरने से मना नहीं किया होगा। और ये जो ट्रायंगल लाइंस आपको दिखाई जाती हैं, ये कहीं भी किसी भी जगह पर ऑफिशियली चार्ट पर आपको मिलेंगी ही नहीं।